deeply prejudiced that a woman can be burnt at the altar of dowry for a simple thing like a motorcycle or a refrigerator. Our lives are less than that. And we have the judicial systems with due apology. And I hope that they listen. Parliament spends 10 hours talking about Vande Mataram. ये नए भक्त है वंदे मातरम की. हम तो पैदाइश से जानते हैं वंदे मातरम क्या है और सोचते हैं कि 3 स्टैंजा और पढ़ने से ज्यादा देशभक्ति की इनकी सर्टिफिकेट मिलेगी, मगर देश के राजधानी का पोल्यूशन के बारे में आज तक जिक्र नहीं किया. सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ लंपन लॉट लाइक दिस? हाँ, हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे. अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने देंगे तो पार्लियामेंट के बाहर आके हम चिल्ला चिल्ला के जब तक हमारे कंठ में साथ हम सुनाएंगे. अरे कुत्ते के पिल्ले को बख्श नहीं सकते. एक पिल्ले को बचा के मैंने पार्लियामेंट क्या गई कि मेरे ऊपर नोटिस आ गए. मैं क्या बताऊं कि आप लोग सोच रहे हो कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ चल रहा था. एक जमाना थी जब संविधान जिन्होंने लिखा उन्होंने जो बुनियाद बनाए थे इस देश पे, उसी पे ये तिरंगा उठती थी. मगर आज नहीं. यू आर आस्किंग फॉर योर राइट्स. यू हैव नो राइट टू योर रिलीजन. यू हैव नो राइट टू योर एस्पर्शंस. अरे यू आर फाइल्ड इनकम टैक्स मेरे फौजियों के ऊपर जिनकी हाथ पांव देश के सेवा में लड़ते हुए भिड़ते हुए बम से उनके हाथ अगर उठ गए और पांव अगर उठ गए और उसको हम पेंशन देते हैं कि उस टांग में क्या वी आर नॉट एबल टू वैल्यू दैट पर्सन कि हम उसमें इनकम टैक्स लगा दिए. अच्छा, तो लूजिंग अ लिम्ब is considered to be gaining an income. Income tax, this is the insensitive government that we are working with. Don't be surprised, कल मेरे ऊपर कोई और नोटिस आ जाएगी. आने दीजिए. मगर आपके जैसे आप संविधान के हकदार हैं, मैं भी हूँ, चाहे कोई भी पार्टी में रहे. So we are not going to be afraid. It is an uphill task. ये सपने मत देखिए कि रातों रात कुछ हो जाएगा, कि पार्लियामेंट में बात आ गई, यहाँ हम जैसे लोग लड़ेंगे बेशक. मगर याद रखिए कि ये जो ब्रूट मेजॉरिटी ये सरकारें गिरा के खरीद के अंदर आए हैं, जो जस्टिस उस पद पर बैठकर दूसरा दिन पार्लियामेंट में आ गए राज्यसभा मेंबर बनकर, क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं आप सोच लीजिए. सो इट इज एन अपहिल टास्क. But we have to fight it collectively, we have to fight it cohesively, and you have to ensure that more state governments will be as responsive as the Telangana government. And you must address Chief Minister Revanth Reddy, who is a young man and has dared to take these decisions and has gone against the union government and has established in the state of Telangana the rights of the people, the rights of the transgenders, and the facilities and amenities and other privileges that have been given to them is today on record. And I'm proud to say that I come from that state, and we will continue to fight for all of you everywhere. I'm repeatedly telling you it's not an easy job. There will always be lacunas, step backs, but as long as we endeavor to fight, they will come. Invisible people will come and divide you all as groups. They are the ones who will allure you and give you incentives. They are the ones who will convert you and say, don't fight collectively, आप चुप आ जाओ, अलग आ जाओ, आपके लिए हम ये करके देंगे. Not those DMs and all those, and not the people across. This is the allurement that you will be exposed to, where the government will try to subvert this movement and will try to suppress our voices. We are with you because you are my fellow citizens.
and you have as much right under this constitution. जैसे आप लोगों ने कहा, सारा पार्लियामेंट एक साइड होने से भी संविधान हर इंसान के साथ है, और हम वही इंसान है जो सोचते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आजकल वो गाना भी सुनाई नहीं देती है, क्यों? पता क्यों वो नहीं सुनाई दे रही? 3 स्टैंजा हम सुन रहे हैं वंदे मातरम का, मगर ये गाना जो एक देश का मुसलमान लिखा था, जो माना था कि ये देश मेरा है, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कटा गया है। So that is the opposition we are facing. It's not an easy journey. I'm not going to underplay it, but there is hope, because there are certain states, the state of Telangana has established their intent and has categorically thumbed their nose at the union government. And I'm hopeful that if we bring in the right political parties, there are 5 state elections going on. I'm not talking politics. I don't belong to those states. I'm not asking for votes. But I am telling you, we need to become pressure groups so that you get better governance and governments into place which will learn to respond to us and will give us our rights. A standing committee discussion actually brings out very good things in any bill. You know, what we do in that is we talk to people who are stakeholders, governments come, departments come, people are called in, just about anybody can put in their points of view, and the bill that come out of that, any day are qualitatively better than what is submitted. And normally I have seen, I don't know the nature of government now, members of parliament would be able to tell us better, but at least earlier on governments used to be sensitive if there were strong voices and strong logic that used to come in. तो एक तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको स्थायी समिति में दे दें बिल को, फिर समय मिलेगा आप लोग अपनी बात रख पाएंगे। इसकी अवनी जी ने कुछ पेचीदगियों के बारे में कहा, मैं इसकी जो लीगल विषय है उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग जो राजनीति में रहते हैं वो हर विषय पे बोलने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं और अपनी राय हर किसी में ज़्यादा देने लगते हैं। आप मुस्कुराइए मत, आपसे तो हम वो राय चाहते हैं, क्योंकि आपको हम सांसद कम एक बुद्धिजीवी और एक ऐसे व्यक्ति जो जनता की भाषा और उसकी वाणी को समझकर संसद में रखता है, उस रूप में आपको देखते हैं, तो आप तो इससे बच नहीं पाएंगे। और मैंने ये हमेशा देखा है कि और ये दो ऐसे विषयों से मेरी बात निकलती है कि धीरे धीरे जो कम से कम 70 और 80 और 90 के दशक में हमने धीरे धीरे देखा था कि भारत का जो वे रहने वाले जो व्यक्ति थे उनमें थोड़ा बहुत दो पहचान विशेष बनती चली गई, एक नागरिकता की और एक इंसानियत की। वो अपने आप को इंसान समझता था और अपने आप को धीरे धीरे नागरिक समझने लगा था। इन दोनों बड़ी पहचानों पर एक बहुत बड़ा हमला कुछ दिनों से हो रहा है, और इस कारण से, क्योंकि जब हम इंसान को सबसे पहले इंसान की तरह देखते हैं और उसके बाद नागरिक की तरह देखते हैं, तो दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, खासकर जब हम प्रशासन की तरफ से या किसी भी पार्लियामेंट या लोकसभा को मान लीजिए उसकी तरफ से किसी कानून को देखते हैं। पहली चीज़, जब हम इंसानियत को देखते हैं तो हम इंसान का सम्मान करते हैं, वो जैसा है, जैसा चाहता है, जैसी उसकी पसंद है, जैसी उसकी पहचानें हैं, जैसी उसकी विविधताएं हैं, जैसा उसको प्रकृति ने या खुद उसने अपने आप को बनाया है, उसमें उसको सम्मान करके उस पहचान से उसके साथ खड़ा होना शायद प्रशासन और सरकार का सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। और उसमें मैंने देखा है गिरावट आती चली जा रही है। दूसरा, जब हम नागरिकता के रूप में देखते हैं, और नागरिकता सामान्यतः हम मानते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी देश में रहता है उसके सरकार के बीच में जो एक लिखित रूप से या अनलिखित रूप से एक समझौता होता है, जिसमें हम उस नागरिकता से सबसे पहला जो संवाद करते हैं वो उसके अधिकारों का करते हैं और उसके बाद बाकी कोई हम संवाद करते हैं। तो अगर हमारी सरकारें या हमारे लिखित कानून उन मनुष्यों के अधिकारों को सबसे प्रथम रूप से स्वीकार करके, समझ करके उसको अगर सम्मान नहीं देती, तो मुझे लगता है प्रशासन या सरकार अपनी सबसे प्रथम जो भूमिकाएं हैं उन पर फेल निकलती है। ये जो एक नई एक आदत पड़ती चली जा रही है हम लोगों में कि हम एक मतता देखने लगे हैं, हम विविधताओं में दरारें देखने लगे हैं और उनसे, उन विविधताओं से और अपनी समाज की और अपने लोगों की बीच की जो अभी इतने सतरंगी शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो शब्द इस्तेमाल हुआ,
उसकी जो एक रंगीनियत है, उसकी जो एक विविधता और मजापन है, उसको जब हम लोग कुचलने में लग गए हैं, तो मुझे लगता है ये आज का जो आप लोग सब यहाँ साथ आए हैं, ये संघर्ष केवल इस विषय पे या इस मुद्दे पे नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए मैं अपने आप को तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इसमें जुड़ सकता हूँ। हम अपने मंच द्वारा, अपने प्लेटफॉर्म द्वारा इसमें क्या कर पाएंगे, कितने दूर तक जा पाएंगे, ये जितना इस आज की अगले 1.5 घंटे की मीटिंग में हमारे साथ के लोग बोलेंगे, आप लोग इस पर हमें ज्ञान देंगे, तो वहाँ से हम इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इस तरीके की तमाम संघर्ष हम लोग एक के बाद एक कमज़ोर होते चले गए, तो ये जो जिन विविधताओं की हम बात करते हैं, जिन ज़रूरतों की बात करते हैं, वो अपने में जो है ओपन सोसाइटी में, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि प्रकृति में हम हर विविधता पे खुश होते हैं। हमको फूल में अगर गुलाब दिखता है, हमें दिक्कत नहीं पड़ती। हमको फूल में कमल दिखता है, हमें दिक्कत नहीं पड़ती। हमें फूल ऐसे पौधे मिलते हैं जिनमें फूल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जिन पौधों में कांटे भी मिलते हैं, वो भी हम लोग उठाकर अपने घर ले जाते हैं, अगर हमें उसमें कुछ न कुछ सुंदर दिखता है या लगता है कि अपने गमले में उसको हम सजो के बढ़ा सके। लेकिन जब इंसानों में आते हैं, और ये तो वो इंसान है जो समझ लीजिए 2 या 4 या 5 हज़ार की सभ्यता के बाद अपने आप को, अपनी पहचान को, समाज में हम कहाँ हैं, हमारी विविधताएं क्या हैं, हमारे तौर तरीके क्या हैं, उसको बहुत